ओके, सो पहले पीरियोडिसिटी में सबसे पहले एक पॉइंट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। तो अभी तुम लोग रिवाइज कर चुके हो, सो यू आर गोइंग टू टेल मी ब्रीफली व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस। व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक रेडियस? The distance between the nucleus and the valence electron is known as atomic radius. Yes, electron, the distance from the center of the nucleus, center of the nucleus to the outermost shell, to the outermost, और जिसको हम लोग वैलेंस शेल भी बोलते हैं, इज कॉल्ड एज एटॉमिक रेडियस। ठीक है, कैन यू टेल मी द यूनिट्स किस में मेजर कर सकते हैं? वैसे तो डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर्स, मीटर्स, कुछ में भी मेजर कर सकते हैं, बट जनरली वी यूज एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, कुछ इस टाइप के यूनिट्स यूज किए जाते हैं, नैनोमीटर्स, टू मेजर द एटॉमिक रेडियस। फाइन, अगर मैं इसका कन्वर्जन्स बताऊं तुम्हें, तो 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10 रेज टू द पावर -10 मीटर, क्योंकि बहुत स्मॉल होने वाला है ना। पिकोमीटर इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस, meters, and nanometer is represented like this, and nano stands for 9, so it is this. Okay, now atomic radius किन forces पे depend करता है? What are the factors which governs the atomic radius? What are the factors which governs the atomic radius? कौन से factors govern करते हैं? मैम effective nuclear charge. Yes, and एक और factor कौन सा effect करता है? Number of protons. Number of orbits. Yes, number of orbits. So mainly दो factors govern करते हैं, तो हम लोग एक एक factor को at a time लेते हैं. So tell me, if number of orbits is increasing, atomic radius will increase or it will decrease? ये तो तुमने करा हुआ है. Will increase. Yes, so number of orbits increases, that means atomic radius will also increase because the distance from the shell will increase. ठीक है, ये हम लोग already periodic उसमें atomic structure वाले chapter में कर चुके थे ना, कि n square times radius increase करता है, where n is the number of orbit. ठीक है, मतलब अगर first orbit is n square times, where n stands for number of orbit. Okay, that means what? अगर मेरा first orbit r distance पर है, so मेरा second orbit कितने distance पर होगा? 4r distance पर, third orbit 9r distance पर, ऐसे. And second thing क्या है? Effective nuclear charge. What do you mean by effective nuclear charge? What do you mean by effective nuclear charge? The force by number which of nucleus protons holds on the number of outermost. Effective outmost nuclear electron. charge, it stands for the force by which the nucleus pulls the outermost, because they are having unlike charges, so attractive force है ये. So the force by which nucleus pulls the outermost electron. ठीक है, सो ये होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. अब बार बार इतना बड़ा टर्म ना लिखना पड़े, सो आई एम गोइंग टू यूज अ नोटेशन लाइक दिस टू डिनोट इफेक्टिव, यस, टू डिनोट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. तो अब हम लोग इसको पीरियोडिक टेबल में अगर हम पढ़ें कि पीरियोडिक टेबल में कैसे हमें पता चलेगा, सो व्हाट आर द ट्रेंड्स इन दी पीरियोडिक टेबल. तो जब हम पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो कैसे डायरेक्शंस में हम लोग मूव करते हैं? From top to bottom, left to right. Yes, so we move top to bottom और left to right. Like एक हम लोग पहले
फर्स्ट लेते हैं। तो सपोजिंग आई एम मूविंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब जब हम टॉप टू बॉटम मूव करेंगे पीरियोडिक टेबल में, तो क्या चीज कांस्टेंट रहती है? हमारा ग्रुप कांस्टेंट रहता है और पीरियड Group. चेंज होते रहते हैं। ग्रुप सेम बट पीरियड चेंजेस। पीरियड डिनोट्स व्हाट? पीरियड Ma'am, orbit. Ma'am, number of orbits. ऑर्बिट। Number of दैट मींस orbits. हमारे नंबर ऑफ Number ऑर्बिट्स of चेंज orbits. होंगे। नंबर ऑफ ऑर्बिट चेंज होंगे तो एटॉमिक रेडियस वैरी करेगा। सो इसलिए ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम व्हाट हैपेंस? What happens on moving top to Ma'am, bottom? atomic radius increases. Yes. Ma'am, Why does atomic it radius increases? Why does because it? of increase Ma'am, the because number the of orbits. increase. Because increase in the addition. Yes. So actually on moving top to bottom, it increases due to the addition of extra orbit. ठीक है। और दूसरा डायरेक्शन क्या होता है? हम लोग किस डायरेक्शन में मूव करते हैं? Left to right. Left to right. यहाँ लेफ्ट टू राइट। सो लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहता है? पीरियड कांस्टेंट Group रहेगा periods. and Group period will be orbits. Period. same, but what will change? Groups will change. Group. तो अब देखो कंडीशन नंबर 1 फेल हो गई ना, नंबर ऑफ पीरियड वाली जो कंडीशन है वो फेल हो गई। तो अब हम जब हमारी फर्स्ट कंडीशन फेल हो गई, तो अब हम कौन सी कंडीशन पे जाएं? First Ma'am, condition Second is condition. second condition, that is effective nuclear charge. Okay, so यहाँ पर number of orbit is same, तो पहली condition हमारी fail हो गई. So I'm moving to the second condition, and what does it stand for? Second condition क्या बोलती है? If अगर force ज़्यादा लगेगा तो atomic radius कम हो जाएगा या ज़्यादा हो जाएगा? कम हो It जाएगा. will decrease. Yes, so this is an attractive force. So attractive force मतलब ये जो फोर्स लग रहा है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है। तो अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तो इसका मतलब है हमारा एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर जाएगा। और ये जो फोर्स है, अंदर से जो फोर्स आ रहा है वो किस पे डिपेंड करेगा? क्योंकि किस पे डिपेंड करेगा? Ma'am, number of protons and number of नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किस पे गवर्न होते हैं? हमारे एटॉमिक नंबर पे। सो वी कैन से अगर हमारे पास इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब ज्यादा होगा? जब हमारे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कब ज्यादा होते हैं? जब एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा तो एटॉमिक रेडियस कम हो जाएगा या Come. कम? So it is inversely related with this. Okay, so this is inverse relationship. Can you check? So that means on moving left to right, what will happen to atomic radius? On moving left Atomic to right, radius will decrease. yes, it decreases. Why? Due to high effective nuclear charge. Due to high effective nuclear charge for same orbit. For same number of orbit. Effective nuclear charge तो on moving top to bottom भी increase करता है because atomic number increase करता है, but उसके साथ साथ distance भी increase करता है, तो इसलिए वो cancel out हो जाता है। बट अगर सेम ऑर्बिट की बात करी जाए तो सेम डिस्टेंस पर तो हमें ये गवर्न करेगा। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? यहाँ पर भी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है, बट उसके साथ साथ डिस्टेंस भी इंक्रीज कर रहा है। वो n स्क्वायर के साथ इंक्रीज कर रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज n टाइम्स इंक्रीज करता है। तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी? n स्क्वायर की कि n की? कौन ज्यादा टाइम्स इंक्रीज कर रहा होगा? कौन ज्यादा टाइम? N square. n स्क्वायर। तो दैट इज व्हाई इस वाले केस में हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात नहीं करते हैं, डिस्टेंस की ही बात करते हैं। बट यहाँ पर क्या हुआ? n की वैल्यू सेम है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज सेम, सो दैट इज व्हाई पहली कंडीशन फेल हो गई, इसलिए हमने सेकेंड कंडीशन के बारे में बात किया। कैन यू गेट द डिफरेंस? कैन यू गेट द डिफरेंस? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. टू दी, अगर मैं रफली रिप्रेजेंट करूं, ये मेरा पीरियोडिक टेबल है रफली याद रखने के लिए। तो ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियस विल डिक्रीज एंड ऑन मूविंग टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस विल increase. ठीक है। and this is we are talking about atomic radius. ऐसे ही atomic radius की तरह ही of an atom.
Similarly, we can also define the ionic radius. Just like we are defining the atomic radius, we can also define ionic radius. So what will be the ionic radius? Again, same definition हम लोग use करेंगे, but वहाँ पे of the atom लिखेंगे और यहाँ पे of an ion. So what is it? The distance from the center of the nucleus to the Yes. outermost valence yes orbit of an ion. ठीक है. So it is again the center from nucleus to the outermost orbit of an ion. अब ions कितने तरीके के होते हैं? Two Two types. What are they? Cation Two and ion. Cation and anion. And an ion. Anion. So what is a cation? When it is formed by loss of A positive electron. ion. Yes, or Loss of electron. electron. Yes, so that means it will have positive charge. Positive ion. Yes, and similarly, what is an anion? It is formed by gain of electron. Gain of of electron. electron. Gain Negatively of charged. electron. Electron. Yes, और जिसके Negatively पास- charged. yes. Negative charge. So let us consider one at a time. So if I consider one at a time, so क्या हो जाता है? When I talk about the ionic radius of a cation, तो फिर क्या हो जाएगा? Ionic radius अगर हम cation की बात करें, जैसे सोडियम एटम की बात करें, तो उसके पास 3 ऑर्बिट्स होंगे. Whereas sodium ion will have 1-2 orbits. So you tell me किसका रेडियस ज्यादा होने वाला है? पहली कंडीशन लगाओ. Sodium atom. Yes, Sodium sodium atom will have greater radius than this. So, but that means what? Formation of cation decreases the radius or increases the radius? Decreases the radius. Yes, Decreases the radius. decreases the radii of the ion from its respective atom. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे लिए ये हो गया. एंड सिमिलरली इफ वी डू इट फॉर एनायन, तो लेट अस टॉक अबाउट लाइक क्लोरीन ले लेते हैं और क्लोराइड आयन. तो क्लोरीन का लिखेंगे तो ये हो गया 287 एंड दिस इज 288. सो नाउ हाउ मेनी ऑर्बिट्स? 3 ऑर्बिट्स एंड 3 ऑर्बिट्स. तो यहाँ हमारी पहली कंडीशन चल सकती है या फेल हो गई? Fail. फेल हो गई. Fail. तो जब हमारी पहली कंडीशन फेल हो जाती है तो हम दूसरी कंडीशन के पास जाते हैं. When your first condition fails, you move to Second condition. condition. Effective Second nuclear condition. charge. condition. That means now to calculate the atomic radius or the ionic radius, it will depend on the atomic Effective nuclear charge. effective nuclear charge. अब यहाँ पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम कैसे निकालें किसका ज्यादा होगा? कि दोनों का तो एटॉमिक आयन का और एटम का एटॉमिक नंबर भी सेम है. तो आई टोल्ड यू ना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक फॉर्मूला होगा. व्हाट वाज दैट? What was that? Number of formula? proton upon number of electron. Yes, number of protons upon number of electrons. लेकिन इसमें कंडीशन रखी थी, कब यूज करना है इसे? For For isoelectronic. Yes, और या फिर same type of atom and ion. ठीक है, अदरवाइज ये कंडीशन ठीक बैठेगी नहीं. तो इफ आई टेल यू व्हाट इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ क्लोरीन एटम, क्या हो जाएगा? क्लोरीन एटम तो न्यूट्रल होता है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम एंड इट विल बी 1. एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लोराइड आयन, so now it will be 17 upon 18 and that will be lesser than 1. So tell me effective nuclear charge के साथ क्या हो रहा है? Effective nuclear charge क्या हो रहा है? Decreasing. Decrease. And how is atomic or radii related to effective nuclear charge? Directly proportional
or Inversely proportional. Inversely proportional. So Inversely then whose atomic radii or ionic radii will be greater? Chlorine ion. Fluoride ion. So that means Chloride ये हम ion. लोग Chloride ion. yes, you can check for other ions also. So you can say formation of an ion. What happens when you form an anion? The radii increases or decreases? Increases. Yes, increases the ionic radii from its respective atom. ये हम लोगों ने इतना लास्ट क्लास में कर लिया था. क्विक रिविजन हुआ. You did this in last Yes, class. ma'am. ठीक है. Yes. So now if supposing I give you Yes, some ma'am. ions like this, then this, and then I give you चलो अरेंज करो इन्हें इन एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई. अरेंज द फॉलोइंग इन एटॉमिक और आयनिक रेडियाइज. Arrange the following according to the atomic or ionic radii. Ma'am, what is sulfur's atomic number? 16. Anyone? Ma'am, in the ascending order, descending order? Any order. Ascending कर दो. Ma'am, aluminium, then magnesium, then sodium, then neon, then fluorine, then sulfur, then oxygen and nitrogen. Yes. So सबका हुआ. हुआ नहीं. So see ये इसका atomic number 13 है, इसका 10 है, इसका 8 है. So if I talk about number of electrons, तो यहाँ पर कितने होने वाले हैं? 13 minus 3, that will be 10. Again 10. This will be 8 plus 2 10. This will be 7 plus 3 10. इसका atomic number 19 है. तो यहाँ पे number of electrons 18 होने वाले हैं. ये 16 plus 2 18 होने वाला है. This is not, these two are not isoelectronic. That's what I wanted to make you realize. Can you check it? सबने ये चेक कर लिया था कि नहीं कर लिया था? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. And then 12 minus 2 and 9 plus 1. बाकी सब isoelectronic है. So now see, all these are containing 3. This one is containing 3 orbits and rest of the others are containing 2 orbits. तो obvious सी बात है, ये जो है ये दोनों size में बड़े होने वाले हैं. ठीक है. अब इन दोनों में से भी कौन बड़ा होगा? Who will be greater in if I talk about potassium ion and sulfide ion? Who will be greater in size? Why sulfide ion will be greater? Why sulfide ion? Because Z effective is
Yes, you can check it according to Z effective, or you can say formation of anion makes bigger and formation of cation makes it smaller. And if you want, you can check it by Z effective. इसका कम हो रहा होगा 1 से और इसका ज्यादा हो रहा होगा. And बाकी सबको मैंने तुम्हें बताया था कि जो जितना ज्यादा more you lose, smaller you become. Who is losing the most? Who is losing the most? Aluminium. Yes. और तुम इसको बाद में Z effective वाले फॉर्मूले से क्रॉस चेक कर सकते हो. So and then more you gain, bigger you become. For isoelectronic species, ये जो ट्रिक है वो किसके लिए चलेगी? सिर्फ किसके लिए वर्क करेगी? Isoelectronic. See, so these many were isoelectronic. So I just use a small trick. More you lose, smaller you become, and more you gain, bigger you become. तो देखो अभी हो गया, कम टाइम में सॉल्व हो गया. Yes, sir. समझा अभी? Clear now? Will Yes, you ma'am. be able to do such questions Yes. related to atomic and ionic radii now? ठीक है, ओके. चलो अब हम नई प्रॉपर्टी की तरफ मूव करते हैं. सो एक और हमें प्रॉपर्टी पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज आयनाइजेशन पोटेंशियल, या कुछ लोग इसको आयनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं. इंथैल्पी का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री में या फिजिक्स में हीट या एनर्जी इन्वॉल्व को हम लोग एक और टर्म से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज इंथैल्पी. ओके, हीट और एनर्जी चेंजेस को हम लोग कहते हैं इंथैल्पी इन थर्मोडायनेमिक्स, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल डेल्टा एच से. ओके, सो टेल मी, हीट चेंजेस या फिर एनर्जी चेंजेस वाले केमिकल प्रोसेसेस कितने टाइप्स के होते हैं? हीट चेंजेस, बताओ Ma'am, कितने टाइप two, के होते हैं? 2 टाइप्स के exothermic होते and हैं. endothermic. Yes, very good, perfect. So there is basically 2 types of heat changes or heat changes processes. One is endothermic. What is an endothermic process? Ma'am, the Ma'am, which change gains in heat. which heat There is is absorbed. absorption of heat. Yes, where you do work. Okay, so heat is absorbed. एंड ऐसे प्रोसेस में, अब ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे प्रोसेस में जो इंथैल्पी होती है वो आती है पॉजिटिव. ठीक है, फॉर एन एंडोथर्मिक प्रोसेस द इंथैल्पी चेंजेस या एनर्जी चेंजेस होते हैं पॉजिटिव, क्योंकि हम दे रहे हैं ना, तो दे रहे हैं इसलिए वो पॉजिटिव हो रहा है. ठीक है, और दूसरा प्रोसेस कौन सा होता है? exothermic Exothermic process. process. यस, सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इस प्रोसेस में क्या होता है? Heat is evolved. When Heat there is is a heat is lost. liberation of heat. Yes, Heat is heat evolved. is liberated, evolved और given out. So इस केस में जो इंथैल्पी होती है that is माइनस Negative. नेगेटिव सिंबल में आती है. ठीक है, और इसके यूनिट्स क्या होने चाहिए होंगे? मतलब अगर हमें इंथैल्पी के Ma'am, यूनिट्स, joules. yes, it Joule. can be in joules, it can be in calories. Calories is also a unit of, you know it? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Calorie is equal to 4.2 joules. Yes, ma'am. Yes, ठीक है. सो इसके इस फॉर्म में किलो जूल्स, किलो कैलोरीज ऐसे कर करके हमारे यूनिट्स इसके हो सकते हैं. कैन यू गेट इट? ठीक है. Yes. सो एग्जैक्टली आयनाइजेशन पोटेंशियल होता क्या है वो हमें चेक करना है. तो आयनाइजेशन पोटेंशियल होता है एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन. मतलब अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हमें कैसे, मतलब कितनी एनर्जी उसको देनी पड़ेगी, तब हम उसे बोलते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल. ठीक है, सो व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दिस? क्योंकि मतलब बेसिक सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो तुम्हें एक एटम को कैटायन में कन्वर्ट करना है, तो तुमने कितना काम किया?
Okay, so the energy required to remove the electron, और इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालोगे? अंदर वाले ऑर्बिट से निकालना इजी होगा या मैम बाहर? आउटर मोस्ट। मैम outermost orbit. Yes. तो यहाँ पर जब भी हम एनर्जी रिक्वायर्ड की बात करते हैं तो वी रिमूव फ्रॉम द आउटरमोस्ट ऑर्बिट्स. दैट इज व्हाट वी मीन बाय ionization potential. So that is what we are going to talk about. So what is the definition? The energy required to remove an electron from the outermost orbit और किससे निकालोगे? outermost orbit किससे निकालोगे? outermost orbit of a molecule किससे? मैम एटम। Yes. Atom. Of outermost orbit of an, ये हमें एक और टर्म यूज करना पड़ता है, isolated gaseous atom. ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकालेंगे? एक आइसोलेटेड गैशियस एटम से. कैन यू टेल मी कि हमने ये टर्म्स क्यों यूज किए? कैन यू टेल मी ये टर्म्स क्यों यूज किए? Ma'am, isolated gaseous atom means that an atom in gaseous form which is See, I will an tell you isolated. the reason for using these terms is, it is important to use these terms. अगर तुमने ये isolated gaseous नहीं use किया तो तुम्हारी definition incomplete मानी जाती है. You have to use this term. Fine. और पहली चीज तो ये बताओ, हाँ तो पहले ये करते हैं, जैसे सोडियम है, तो सोडियम एट रूम टेम्परेचर किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? Solid. Solid. सॉलिड. तो कैन यू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सॉलिड, बिकॉज हर एक पार्टिकल तो बहुत क्लोजली पैक्ड होगा. No, ma'am. सो हम क्या करेंगे? पहले हम उस एक एटम को आइसोलेट करेंगे. तो एटम को आइसोलेट करना सॉलिड स्टेट में इजी है या गैशियस स्टेट में इजी है? Ma'am, gaseous. Gaseous state. स्टेट में इजी है ना. तो ऑल्दो दिस इज आइसोलेटेड ओनली, सी इट इज आइसोलेटेड, सोडियम एटम अलग अलग ही है, कंबाइंड नहीं है, बट इट इज नॉट, I cannot take out sodium atom individually because it has got more intermolecular force of attraction. So I will convert it into this gaseous, so that now it is convenient for me to remove the electron, and now I will remove the electron and make it converted to this. So that's why we say ice अलग होना चाहिए atom, और gaseous state में easy होता है. तो यहाँ पे लगने वाली एनर्जी कौन सी होगी? सॉलिड से गैस में कन्वर्ट करते हो तो यहाँ कौन सी एनर्जी लगेगी? What is this called as? What is this process is called as? Endothermic. अरे एंडोथर्मिक तो है, कौन किस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? Sublimation. Yes. Sublimation. ये काम कोई तुम्हें करके देगा, तुम इसको नहीं काउंट करोगे, तुम बोलोगे मुझे आइसोलेटेड गैशियस ही दो तभी मैं निकाल के दूंगा. ठीक है, और यहाँ से जब हमें आइसोलेटेड भी मिल गया, गैशियस भी मिल गया, तब जब हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं तो ये लगने वाली एनर्जी हमारी कौन सी होती है? आयनाइजेशन पोटेंशियल. हम ये वाली एनर्जी नहीं काउंट करेंगे, एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे, सिर्फ इतना काम करेंगे. कैन यू गेट इट? Yes, ma'am. ठीक है. Similarly, if I talk about any substance like oxygen, फ्लोरीन वगैरह, तो वो लोग क्या होते हैं? दे आर, जैसे अगर मैं बात करूं तुमसे क्लोरीन की, तो क्लोरीन एट रूम टेम्परेचर कैसे एग्जिस्ट करता है? Gaseous. And gaseous form. गैशियस में है, बट क्या आइसोलेटेड है? क्या No, अलग ma'am. अलग है एक एटम? नो, क्लोरीन इज एग्जिस्टिंग इन द फॉर्म ऑफ अ मॉलिक्यूल. व्हाट इज अ मॉलिक्यूल? What is a molecule over here? Ma'am, two atoms of chlorine combined to Yes. form a molecule. So two atoms are combined by a force, which is called as, which force is this? Ma'am, This is called as a electrovalent chemical bond. bond. This is called as a chemical bond. The force which joins the atom is called as chemical bond.
एंड अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन्हें आइसोलेट करना पड़ेगा। दिस इज मतलब ये इस बारी हमारे साथ कंडीशन क्या है, वो गैसियस में तो है बट इट इज नॉट आइसोलेटेड, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे आइसोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो कि नॉन आइसोलेटेड है उसे आइसोलेट करेंगे, 2 क्लोरीन एटम्स मिल जाएंगे हमें, and then we will take any one chlorine atom. Okay, out of this you take any one chlorine atom और उसमें से इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। फाइन, तो 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप है, यहाँ पर जो हम बॉन्ड को तोड़ने की एनर्जी लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। यहाँ देखो आइसोलेट करने के लिए हमें काम करना पड़ा, इसको क्या बोलेंगे, मैम बॉन्ड को तोड़ने की बॉन्ड एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी। Yes. So now see, gaseous तो था, but it was not isolated. We made it isolated, and now यहाँ से it is isolated also and gaseous also. तो यहाँ पे लगने वाली एनर्जी हमारी क्या है, कौन सी एनर्जी होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। तो अब समझ में आया कि I used a term to remove an electron from an isolated gaseous atom. Why did I use this term? Can you get it? Yes. You are not going Yes, to ma'am. count ki whether you are giving on solid state or not. It is your job. You will give me in isolated state and gaseous state, then only I will do the process. मैम व्हाट अबाउट लिक्विड स्टेट? तो उसको वेपोराइज करोगे, जैसे मैंने तुम्हें यहाँ सब्लिमेशन करा दिया, वहां उसको वेपोराइजेशन कराओगे, पहले गैसियस में कन्वर्ट कराओगे। Can you get it? Same as case 1. ओके, और अगर सपोजिंग तुम्हारा लिक्विड जैसे ब्रोमीन की तरह है तो पहले उसको वेपोराइज करोगे, गैस में कन्वर्ट करोगे और फिर उसके बाद उसको आइसोलेट करोगे, दोनों काम करने पड़ जाएंगे। कैन यू गेट इट? यस। ठीक है, सपोजिंग इफ यू वांट टू डिस्कस ओनली, लेट अस डिस्कस। सपोज इफ यू आर वांटिंग टू डिस्कस तो लेट मी डिस्कस विद यू। सपोजिंग केस 3, इफ यू वांट टू डिस्कस, क्योंकि अब तुमने बोल दिया है तो लेट अस डू इट। सो सपोजिंग यू आर हैविंग ब्रोमीन, bromine at room temperature is in which state, you know about it? मैम लिक्विड। तो यहाँ डबल प्रॉब्लम है, एक तो ये लिक्विड स्टेट में है और दूसरा इज इट आइसोलेटेड, जैसे सोडियम तो No, ma'am. सिंगल एग्जिस्ट करता था, No, ma'am. नो इट इज नॉन आइसोलेटेड आल्सो। तो दोनों काम करने पड़ेंगे कि नहीं? यस ठीक मैम। है, तो अब यहाँ डबल मेहनत हो गई। तो हम पहले क्या करेंगे, ब्रोमीन को लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे लगने वाली एनर्जी कौन सी एनर्जी होगी? मैम वेपराइज। Yes, and then it is not isolated. So what we are going to do, we are going to break the bond present between them. That is which energy it is called? Bond deposition energy. And bond dissociation This energy. will be bond dissociation energy. अब इसमें से क्योंकि gaseous atom बोला था तो 2 atoms की बात नहीं करेंगे। Okay, bond dissociation एनर्जी। सो एक ही एटम को चूज करेंगे इनमें से और अब हम लोग इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, क्योंकि अब इजी होगा। मॉलिक्यूल स्टेट से आप इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल सकते हो, एटम स्टेट से निकाल सकते हो। सो यहाँ पे लगने वाली एनर्जी को ही हम क्या बोलेंगे? Ionization energy. यस, आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन पोटेंशियल और आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो माय फोकस इज on this energy only, other forms I am not concerned. Can you get it? मैम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हम लोग नहीं कर सकते हैं सर? भाई हम लोग अभी रेडियो एक्टिविटी की बात नहीं करते, ठीक है? जब हमारे को आएगा, हम लोग ऑलरेडी समथिंग एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं। नाउ आई विल नॉट कंफ्यूज एवरीथिंग ओवर हियर, सो वेट फॉर द टाइम बीइंग, अभी नहीं करेंगे हम। ओके मैम। खिचड़ी नहीं पका सकते, थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे इंट्रोड्यूस करेंगे। ओके, अभी यही तुम्हारे लिए सफिशिएंट है। फिर जब ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा देन वी विल गो टुवर्ड्स दैट थिंग। ओके, सो विल मूव स्टेप बाय स्टेप। निकाल सकते हैं बट धीरे धीरे एक बार इंक्रीज करेंगे लेवल। हाँ, सो डिड यू गेट व्हाट इज आयनाइजेशन पोटेंशियल नाउ? यस मैम। Yes, ma'am.
सो अब हमारे पास फिर से वही चीज, फैक्टर्स ऑन विच द आयनाइजेशन पोटेंशियल इज गोइंग टू डिपेंड, फैक्टर्स ऑन विच ionization potential depends. So what do you think will be the factors on which it will depend? हमारी जो State of the element. स्टेट तो बेटा एक ही रहेगी ना, गैसियस रहेगा, आइसोलेटेड रहेगा, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन में बोल दिया हमें आइसोलेट और गैसियस करके ही दो, हम तभी करेंगे, वो मेरा काम नहीं है, हम इसके बारे में बात नहीं करते, हमसे हमें गैसियस मिलता है, आइसोलेटेड मिलता है, तभी हम इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो स्टेट की बात नहीं होगी। और बताओ क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? कम ऑन, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, एटॉमिक रेडियस पे डिपेंड करेगा,